Hi, good morning, my dear student. Today we will continue class 12th history, chapter 11, Rebels and Raj. Dear student, in this topic we have already discussed the various important points. In that class, I have already discussed about the causes of the revolt 1857. That why it happened, what was the reason behind that. Dear student, if you have remembered my previous class, then you can the proper information that why revolt happened. And I have discussed that the important causes, I counted their name, like the political causes, like the economical causes, like religious or social causes, and sudden reaction, military causes also. That all we have discussed in my previous video. And in my last video, I have explained very vast way about the political causes. Today, we will read the next causes, that is the economical causes. My dear student, the next causes is the economical causes. Dear student, here the economical causes. The first, that was the summary settlements. Summary settlements, which was imposed in 1856. According to that the Britishers inspect the jamidari of the jamidars. That jamidari on the basis of the legal documents. If the jamidars have legal documents, then their jamidari that was legally proved and they enjoyed it. But if they have no documents, during that conditions, their jamidari that was auctioned by the British officials. Second, Inam Commission, which was also implemented in 1856. According to that, According to that also, the जमींदार्स they were helpless to अपनी जमींदारी को खोने के लिए मजबूर थे, क्योंकि इसमें भी similarly we have seen that Inam Commission also similarly the summary settlements. In that system also, the जमींदारी that was inspected by the British officials, and if जमींदार्स have no documents, legal documents, ancestral documents, then their जमींदारी that was auctioned. And third, the land settlement system. I think there is no need to explain about that. The exploitation during land settlements, the critical conditions, miserable conditions for the peasants as well as the jamidar also. We have discussed a lot about that topics on my previous video, where we discussed that why jamidar defaulted on payment. My dear student, here one most important cause also we can include in the economical causes, that was the money lenders and debt. Money lenders, they were exploited the peasants. They were just like a mediator, and they provide debt for the peasants. Peasants helpless to take them the debt for their next crop and for the purchasing the seeds and such type of the agriculture equipments what they want. So that's why the money lenders, they exploited them on the basis of mental level, physical level and economical level both. The persons, if he have no money, if they are not paid properly, then their land also taken by the zamindars. Then the land that was seized by that persons. Debt also play important role in the economical causes. My dear student, अगर इकोनॉमिकल कॉजेज की बात करें तो इसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए. जैसे क्या कहता है कि अंग्रेजों की आर्थिक जो शोषण नीति थी, अंग्रेजों की जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी, ये नीति विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनी. ये एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी जो उनके लैंड सेटलमेंट्स में दिखाई देती है, ये नित्य नए नए आविष्कार करके नए नए करों को इम्पोज करते थे. और ये नए कर निश्चित रूप से किसानों के लिए अत्यंत ही दुखमय थे, अत्यंत ही कष्टकारी थे. और कहता है कि जब ये नए करों में ये वृद्धि करते थे, तो भारतीय पीजेंट्स हों या वर्कर्स हों या आर्टिसियंस हों, सभी की कंडीशंस डे बाय डे खराब होती चली जा रही थी. इफ यू शुड ऑब्जर्व अबाउट दैट द कंडीशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द पीपुल, कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स, workers, artisans who suffered during
the imperial rules. I am telling here, I want to indicate the conditions of the traders, weavers. What happened with them? No doubt they were exploited by them. Why? Because the various type of restrictive policy imposed by the British officials on them. They have no right to what? Directly send their goods from India to others country. There were high levy taxes were imposed. There were the huge amount of the various type of taxes which they have faced. So that's why that was the very difficult condition for the trade also. ये कंडीशंस बड़ी खराब थी किसानों के लिए, ये टैक्सेस व्यापारियों के लिए। कहता है ये जो पूरी तरीके से जो भारतीय जो इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने नष्ट कर दिया, और साथ ही साथ सूखा, ड्राट, बाढ़, फ्लड ने फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद करके महाजनों को एक अच्छा अवसर दिया जिससे किसानों की स्थिति, किसानों के जमीन पर कब्जा कर ले। किसान बड़ी पैमाने पे कर्ज में डूबते चले गए और वो मजबूर थे कि वो अब इनके कंट्रोल में, इनकी जमीन महाजनों के कंट्रोल में, मनी लैंडर्स के कंट्रोल में या डेब्ट के आधार पे उनके पास चली जाती थी। दैट इज द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द peasants. We have also discussed about the conditions of the traders, weavers. What happened with them? Their industry that was destroyed by the British officials. To impose what? The discriminatory, the policies. बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी गई कि भारतीय जो किसान था, वीवर था, जो भारतीय वर्कर्स थे, उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। न्यायालयों में जब कभी पीजेंट्स और महाजन मनीलैंडर्स के बीच कभी झगड़ा होती थी, डिस्प्यूट्स होते थे, पहले तो किसान अपनी मैटर को कोर्ट तक नहीं ले जा सकते थे। बड़ी हिम्मत करके अगर वो कोर्ट जाते भी थे तो ये महाजन, ये जो न्यायालयों में अपने साथ एक ऐसा पैक्ट बना लेते थे, एक ऐसा उनसे गठबंधन बना लेते थे कि न्यायालयों से महाजनों के पक्ष में ही डिसीजन दे दिए जाते थे और किसान यहाँ पे एक बार फिर न्याय से पूरी तरीके से वंचित रह जाता था। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी जिससे भुक्तभोगी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अवसर की तलाश कर रहे हैं। ये सारे लोग जो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेड थे, इस तरीके से परेशान थे, दे वर ऑल वांटेड टू क्या करना? टू किक आउट दैट पीपुल्स, दैट रूल विच इज रूलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। जो उसमें कर रही थी उसके अगेंस्ट ये लोग उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे जो सबसे महत्वपूर्ण आघात किया था वो था उनके व्यापार को पूरी तरीके से नष्ट करना। इंडियन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। आई एम नॉट सेइंग अबाउट transportation system. Why? Because transportation system was used by the British official according to their own ways. But the trade that was destroyed. Trade, if they are not in favor of the British officials, they destroyed it according to what? In favor of them. अपने अवसर के लिए, अपने लाभ के लिए उन्होंने उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने on the what? If all the incident which was happening during that time, it was not silently accepted. The various Indian leaders, economists, they protested. But what they did in that conditions when they were not powerful. But they indicate the actual conditions which was happening during that time. What conditions? Conditions that was very clear. The various leaders like Dadabhai Naoroji, R.P. Dutt, R.C. Dutt, Gopal Krishna Gokhale, these are all the economists. R.C. Dutt, Economic History of India, Dadabhai Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India, English and Debt to India. On that articles, Dadabhai Naoroji tried to prove that the drain theory that was working during that time, drain theory that was implemented by the British official in India. भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत पे पूरे तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स काम कर रहे थे। इन चीजों को उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से दीज आर ऑल रीजन्स बिहाइंड रिवोल्ट, दैट इज द इकोनॉमिकल रीजन्स। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग।
The revolt, it was not happened suddenly. The revolt, that was causes of a group. I mean to say that the various causes for the responsible of this revolt, which was denied by the British officials during that time, and that's the result, revolt. The next topic, what we are going to read, that is what? That is the religious or social causes. That is the very important topic. Also, in which we will read what was the social causes. Social causes. What was the social causes? What were the social causes? That was the various social causes, which was done by the British officials. कई सारे सामाजिक धार्मिक कारण थे. सोशल रिलीजियस कॉजेज, बोथ सोशल रिलीजियस कॉजेज. वी हैव टू मेंशन इट. सोशल रिलीजियस कॉजेज. अगर सोशल रिलीजियस कॉजेज की बात करें तो कहता है कि जो उस समय भारतीय समाज में कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो समाज और सामाजिक कुरीतियों के रूप में प्रचलित थे. नो डाउट दैट स्टेप विच वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दैट वॉज इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, बट इट वॉज टेकन एज ए व्हाट? टेकन एज ए स्टेप. क्या करने के लिए? एक ऐसे स्टेप के रूप में एक्सेप्ट किया गया भारतीयों के द्वारा जो ये प्रूव कर रहा हो कि अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारतीय लोक संस्कृति को, भारतीय सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है. इवन दैट वाज द टू गवर्नर जनरल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू, द फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, Dalhousie, Lord Ellenborough, Lord William Bentinck, Sati practices. Lord Dalhousie, what? Widow remarries. Ellenborough, slavery, abolition of slavery. And Bentinck also, Sati practices plus ठग सिस्टम, ठगी प्रथा. And Hastings, Harding, human sacrifices. These are all abolished by the British officials. ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा क्या कर गया है बैन. जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक आर्टिकल बनाए. राजा राम मोहन राय की सहायता से राजा राम मोहन राय ने काफी काम किया भारत में सती प्रैक्टिसेस जो थी उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में. राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म किया गया भारत में. सती प्रथा के लिए कानून बने और कानून बना के उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया गया, इससे भारतीय और उस समय के तत्कालीन लीडरों को ऐसा लगा कि सती व्यवस्था जो भारत की एक प्रचलित व्यवस्था है जिसको पवित्र रूप में माना जाता था, उसको खत्म करने का प्रयास जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, ये एक सामाजिक सुधार के रूप में नहीं लिया उन लोगों ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति के ऊपर चोट है. ठीक ऐसे ही लॉर्ड डलहौजी के समय विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया गया. विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वरचंद विद्यासागर, they played very important role to pass that act, widow remarriage act. विधवाओं की शादी के लिए जो प्रयास किया गया ये सबसे महत्वपूर्ण था और इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक एक्ट पारित करवाया और उसमें उन्होंने इसको पूरी तरीके से
लीगली प्रोविजन के थ्रू इसको बना दिया। ये नियम भी तत्कालीन भारतीय समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए। एलन बरो ने स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश कर दी। हार्डिंग ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो नर्मली दी जाती थी उनको खत्म किया। इसी तरीके से तमाम सारे ऐसी सामाजिक कुरीतियां थीं जिनको अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय समाज सुधारकों कुछ भारतीय समाज सुधारकों की अगुवाई में समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सारे सुधार भी एक अपोजिशन के रूप में ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा लिए गए, भारतीयों के द्वारा लिए गए ब्रिटिश ऑफिसर के स्टेप्स को। अगर बात करें तो विलियम बेंटिक और डलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड डलहौजी the various type of the rules, the policies that was made by them, for I mean to say that it was the social reforms which was started by the British Governor General, especially Lord Dalhousie and Lord William Bentinck, like sati practices, like human sacrifices, like कन्या वध, छोटी बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। राजस्थान में राजपूताने में यदि कोई छोटी बच्ची पैदा होती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि लोग सोचते थे कि इससे मान और प्रतिष्ठा उनकी घट जाएगी। सिमिलरली द अदर थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट कहा गया, विडो रिमैरिज आल्सो। अब पंडित मौलवियों ने जानबूझकर अंग्रेजों के विचारों को चुनौती दी, क्योंकि इन कार्यों से उनकी शक्ति और प्रभाव में कमी आई। यूरोपीय अधिकारी, यूरोपियन ऑफिशियल्स भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस संबंध में तिलक ने लिखा, लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया। अकॉर्डिंग टू दैट कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो टोटली क्या था, टोटली अगेंस्ट था। और ये जो दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो सारे फौजी और गैर फौजी मामलों में जो फैसले करने के लिए परिषदें गठित हो गई थी, उन लोगों ने भी जो डिस्क्रिमिनेटिव स्टेप लिए, इनने भी क्या किया, इन लोगों ने भी भारतीयों को अनसेटिस्फैक्ट किया। लाइक कोर्ट में जूते निकाल के जाना। आप के अगर कोई एल्डर ब्रदर क्लास 9th में होंगे तो लास्ट चैप्टर है क्लोथिंग, एसएसटी के हिस्ट्री बुक की लास्ट चैप्टर है क्लोथिंग। यू शुड रीड दैट, and if you will read, then you can easily understand that which type of discriminations that was faced by the Indians in in the court, in the British offices, these type of other places। जो इसमें सेना और नागरिक प्रशासन से जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने काफी इनके साथ दुर्व्यवहार किए। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादों कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें हो रही थी, ये जो भी चीजें हो रही थी, जितनी जो घटनाएं थी, ये किस बात को कह रही थी, मुगल शहजादों को भी एक तरीके से क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। कहता है कि जो लोग भारतीय थे, जो पूजा करते थे, उनको भी गाली दी गई। प्रोफेट मोहम्मद को, राम को गालियां दी गई, उनके साथ असम्मानजनक भाषाओं का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश इंडियंस को काले और सुअर तक की संज्ञा उन्होंने दी, स्विनिस। उन्होंने कहा भारत क्या है, इंडियंस आर लाइक ए अनसिविलाइज्ड पीपल, दे वर वाइल्ड, दे वर लाइक ए पिग, आई मीन टू से दैट बोर सुअर हैं, ये काले हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं। इस तरह की जो तमाम अपमानजनक बातें भारतीयों के लिए की गई थी। होटलों और क्लब में उनके जाने के लिए पे रोक लगा दी गई थी। Indians, I hope you have remembered in your previous classes where the poster which is given, where they clearly mention that in civil area, the Indians and pig, they were strictly prohibited to join civil area. वो civil area में they have strictly prohibited to enter the civil area। कहता है कि जो काले हैं, ब्लैक हैं, जो इंडियंस हैं, ब्लैक एंड इंडियंस, दे वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू एंटर इन सिविल एरिया। सिविल एरिया में जाने, सिविल लाइन्स में जाने में उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था। ये सिविल लाइन ब्रिटिश की कॉलोनियां थी। ब्रिटिश जहाँ रहते थे उन लोगों के घर थे जहाँ पे इनको रहना पड़ता था।
यहाँ जाने पर इनकी परमिशन नहीं थी। होटलों और क्लब में भी इनको नहीं जाना जाता था। 1813 तक जब भारत में ब्रिटिश मिशनरीज को परमिट कर दिया गया कि भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें। इट मीन्स एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1830 it gives us permission to Christian missionaries to what to spread their Christianity, their religion in India. And when they started to क्या करने के लिए, to एक धर्म से दूसरे धर्म तक क्या किया गया, दोनों धर्मों, हिंदू धर्म से लोगों को ईसाई बनाया गया, धर्म परिवर्तन कराए गए बड़े पैमाने पे। उसके लिए काफी प्रयास भी हुआ। जब 1813 के एक्ट में ये बता दिया गया कि भारतीयों को, इंडियंस को अब किस ईसाई मिशनरियां अपने अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकती हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकती हैं। तो जब 1813 में ये भारत में उनको आने की अनुमति मिल गई, तब से उनके प्रचार का कार्य भी बहुत बढ़ गया। अब शिक्षण संस्थाओं में भी ईसाइयों ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया। 1845 में एक नियम के द्वारा जो जेल थी, जो प्रिजन थे, उसमें प्रिजनर्स के लिए भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। वो अपने खाने के बर्तन जेल में नहीं ले जा सकते थे। आर्टिकल 1845 में एक पॉलिसीज, एक रूल्स पारित कर दिया गया। फिर इसके बाद डे बाय डे इसको और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव बनाया जाने लगा। जेल में खाना, ब्राह्मणों का खाना दलित से बनवाया जाने लगा। ब्राह्मण जो नॉन वेजिटेरियंस थे, उनमें जो वेजिटेरियंस थे उनमें नॉन वेजिटेरियंस के बर्तन को मिक्सअप कर दी गई। उसी बर्तन से, उस बर्तन का यूज नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी किया गया और वेजिटेरियंस के लिए भी किया गया। मुस्लिमों के द्वारा खाने बनवाए गए और इस तरीके से पूरी तरीके से इनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया। जेल में ये सारी चीजें हो रही थी। 1845 के जो नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन और बर्तन ले जाने पर जो रोक लगा दी गई थी, उसमें कैदियों का भोजन एक गैर ब्राह्मण द्वारा बनाया जाना प्रारंभ किया गया। इससे कैदियों को लगा कि उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। गोपीनाथ नामक एक बंगाली हिंदू जो ईसाई बन चुका था, उसमें लिखता है कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक, क्या लिखा, वो लिखता है कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक ईसाई धर्म की शिक्षा देता था। एक अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड्स ने लिखा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश में ईसाई बनाना था, जिसको हम बनाने में असमर्थ हो गए। इसीलिए ये बाद में वो कहेगा, जब रिवोल्ट हो जाता है तो कहता है कि एडवर्ड्स कहता है कि हम ये रिवोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि भारतीयों को हम ईसाई बनाने में सफल नहीं हुए। और फिर भारत पर हमारे जो अधिकार का अंतिम उद्देश्य है, भारत को ईसाई बनाना, भारतीयों को गाली देना, ये जो चीजें हो रही थी, ये पूरी तरीके से भारतीयों को अनसेटिस्फैक्ट कर रही थी। ये भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ, विरुद्ध उसके मन में असंतोष की भाव उत्पन्न कर रही थी। और फिर सैनिक अधिकारी जो प्रोफेट मोहम्मद और राम जैसे भारत के गॉड को गाली देते थे, भारत के जो सम्मानजनक स्थान थे उनको लोग गाली देते थे, उन लोगों को भी ये भी कारण था। मंदिर, मस्जिद, पुरोहित, इमाम, इन सारे लोगों की जमीनों पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिए। और उससे भी बड़ा 1815 में लैक्स लॉ की रूल पारित कर दिया गया। 1850 लैक्स लॉ की रूल, ये क्या था भाई? कहता है 1815 में लैक्स लॉ की रूल्स पारित कर दिया गया। उसमें पहले रूल्स थी कि जो लोग ईसाई बन चुके हैं वो अगर कन्वर्टेड हो गए ईसाई धर्म में तो उनको पैटर्नल प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा। बट 1815 के आर्टिकल 21 के थ्रू ये रूल बना दिया गया कि जो कन्वर्टेड हैं उन्हें भी अपने पिता की पैटर्नल प्रॉपर्टी में, फादर की पैटर्नल प्रॉपर्टी में राइट्स प्रॉपर मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। ये चीजें भी उन्हें अनसेटिस्फैक्ट कर रही थी। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें ये बात क्लियर कर रही थी, एक बड़ा विरोध उत्पन्न कर रही थी। धार्मिक कारण और सामाजिक कारण, सोशल रिफॉर्म्स जो हुए वो, जो रिलीजियस परिवर्तन हो रहे थे वो, दीज आर आल्सो द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिवोल्ट दैट वी विल गोइंग टू रीड, दैट वाज व्हाट, जो सिपाही अनसेटिस्फैक्शंस थी। सिपाही अनसेटिस्फैक्शन क्या थी, इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
that was connected with this, the Sipahi unsatisfactions. Sipahi unsatisfaction. ये क्या थी भाई सिपाही अनसेटिस्फेक्शन? कहता है सिपाही अनसेटिस्फेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये कि सिपाही में लॉरेंस कहता है कि हम भारतीय सिपाहियों की मदद तभी कर चाहते हैं जब हम पूरी तरीके से बेबस हो जाते हैं। फिर सैनिकों के जो सबसे महत्वपूर्ण अनसेटिस्फेक्शंस थे वो ये थे कि समाज के जो सैनिक थे ब्रिटिश काल में वो समाज के उच्च वर्ग से आते थे। ये उच्च वर्ग के लोगों में जो असंतोष व्याप्त था वो बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों में भी व्याप्त था। बंगाल सेना के अधिकांश सैनिक ब्राह्मण या राजपूत थे और फिर ये जो ब्राह्मण या राजपूत थे उनमें कार्नवालिस ने क्या किया, उनके आंग्लीकरण की नीति के कारण भारतीयों के लिए पद वृद्धि के दरवाजे बंद हो गए। आई मीन टू से दैट इफ यू विल minutely observe about the British Army, then you find that the Sipahi, the Indian Sipahi, who was part of the British Army, they belonged to mostly the upper caste of the Hindu religion, like they were Brahmins or they were Rajputs. Lord Cornwallis passed a rule according to that the Indians, they were unable to promote the higher post in British Army. So that's why that is the main matter which unsatisfied the Indian Army, Indian Sipahi. That is the first. Second, the Indian Sipahi, he know very well that the new recruited Sipahi, if he was white man's, he can promote it as soon as possible. अगर उसकी सेवाएं कम समय की हो फिर भी वो उनका सीनियर बन जाता था, उनकी सीनियरिटी उसके साथ जुड़ जाती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनकी सीनियरिटी उनके साथ जुड़ने से वो कम उम्र का व्यक्ति भारतीय सिपाहियों की तुलना में श्रेष्ठ हो जाता था, आगे बढ़ जाता था। ये सारी चीजें भारतीयों को पूरी तरीके से अनसेटिस्फैक्ट कर रही थी। भारतीय सिपाहियों का वेतन भी बहुत कम था, सैलरी इंडियन सिपाही की सैलरी ब्रिटिश सिपाही की तुलना में काफी कम थी। उन्हें 7 रुपए महीने वेतन मिलता था, जबकि ब्रिटिश सिपाही को 30 से 35 और कभी कभी 45 रुपए मिलते थे। आई मीन टू से दैट इंडियन सिपाही सैलरी ऑफ इंडियन सिपाही that was only 7 rupees, but white man's he obtained 35 to 45 rupees. That was the major difference in salary. ये जो डिफरेंसेस थे ये भी भारतीय सिपाहियों को अनसेटिस्फाइड कर रहे थे रिवोल्ट के लिए। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सिपाहियों के लिए सैलरी के साथ साथ उनके जो सम्मान थे, उनकी जो इज्जत थी, वो भी उनको ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा कम दी जा रही थी। अगर रेशियो देखें ब्रिटिश आर्मी में तो रेशियो 5:1, इट मीन्स 5 दे वर इंडियन एंड 1 इट मीन्स व्हाइट मैन। कह रहा है कि अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसमें 5 संबंधी 1 का अनुपात था। 5:1 का जो रेशियो था उसमें 5% इंडियन सिपाही थे और 1% व्हाइट मैन्स थे। और इसके बाद भी इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, जो इस बात को भारतीयों को असंतोष के लिए एक बड़ा कारण दे रहे थे। सेना की जो सबसे बड़ी कमान थी बंगाल की, जो सबसे बड़ी थी, यहाँ की मुख्य छावनियां बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बैरक थी, गैरिसन थी। बिहार में दानापुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मेरठ, पश्चिम में सरहिंद, लाहौर और पेशावर और मध्य भारत में ग्वालियर अन्य अंग्रेजों की सबसे बड़ी भारत में छावनी थी।
कैंटोनमेंट था और यहाँ पे रेशियो इसी अनुपात में सभी जगह थे. बट विच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द ब्रिटिश, आई मीन टू से दैट इंडियन ब्रिटिश सिपाही, that was the way discriminated. So that's why they became unsatisfied against that rule and they involved themselves that. And these are all the regions. The next regions we will discuss the sudden reaction. Sudden reactions क्या थे? We will read in our next video. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care. I hope you understand. These are all points. So you have to remember it. So goodbye and take care. Bye.